value education. At first, value education. What is value education? What is meant by value education? It has not a narrow meaning. Value education has very broad meaning. It includes many areas of learning. And value education is important today because students and also parents needs only academic knowledge, and they don't understand the importance of other knowledge. So nowadays value education is included and more emphasis is being given on value education at all the places. Value education includes behavioral education to the students, moral education to the students, how to behavioral education means how to behave with others. It includes behavior with all the persons, even plants, other animals in surrounding. This value education also includes behavioral change in students that has lost nowadays due to change in tradition. Many changes have occurred in our society, and these changes develops some bad behavior in the students. So value education is most necessary nowadays because being an intelligent student is not enough. For example, when we see an intelligent student in the class and that student don't pay respect to teachers by thinking that I am knowing all things that he will teach. ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं जब हम जाते हैं अपने क्लासरूम में, तो जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इट मीन्स जो एकेडमिक में बेस्ट परफॉर्मर हैं, जो बेस्ट मार्क्स स्कोरिंग हैं, वो टीचर को एवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आप मैथ्स पीरियड गए वो इंग्लिश कर रहे हैं, आप इंग्लिश पीरियड गए वो एसएसटी कर रहे हैं, आप साइंस पढ़ाने गए वो संस्कृत कर रहे हैं, और बोलने पर मैम हमको ये सभी आता है, सर हमको ये सब आता है, मुझे इस सब्जेक्ट को। बट दिस इज नॉट द रियलिटी. Not all students can become Dr. Rajendra Prasad. Not all students are better than their teachers. And even an intelligent student, on the basis of their marks scoring, will not also be better than his subject teacher. And this comes before us when teachers will ask some topic, then their narrow knowledge, narrow thinking
comes before us. And then students are children. तब वो एक बार में अगर आपको कहते हैं आपको सर मैथ्स में जो आएगा सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट है, तो ये बोलना और ये सोचना भी उनमें वैल्यू एजुकेशन की कमी है. बिकॉज नो स्टूडेंट नो एनी इज परफेक्ट एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, एंड वी नो दैट नो एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट among us, among the students of our school, no exception, because no any has scored 100% even in marks, even in subject marks. So we have to inculcate moral knowledge in them, where they have to respect others, and they have also they should have also tried to know their deficiency. उन्हें अपनी कमी को पता करना है. अगर वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं और कोई टीचर उनसे अगर अनसेटिस्फाइड है, उसको बिहेव करने नहीं आता है, अगर स्टूडेंट के साथ उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो इन्हीं चीज़ों को भरने के लिए, इन्हीं चीज़ों को इन बच्चों में, इन स्टूडेंट्स में विकसित करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन को लाना पड़ता है. बट इट डजंट मीन दैट ओनली वैल्यू एजुकेशन, ओनली inculcating moral education in students is enough. These all are supportive. These all value education are supportive, but main aim is to give them subject knowledge, academic knowledge, and along with subject knowledge. इस subject knowledge के साथ हमें उनमें moral value, behavioral value, mental development value, that if you know all the things of your subject, of your syllabus, then try to read another thing, then you should purchase books of another publication, books of some competitive exam. These all will develop value in students. If we become limit, अगर हम खुद ही लिमिट हो जाते हैं, चलो तुम्हें इस 5 चैप्टर से ये 80 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम परफेक्ट हो गए. अगर हम ऐसा एजुकेशन देते हैं तो वहाँ से वो क्या होगा, सबसे ऊंचाई पे चढ़ने के बाद क्या होता है, अगर हम सबसे ऊंचाई पर होते हैं तो फिर वहाँ से तो नीचे स्थित जो मानव जाति है या जो कोई भी इन टर्म ऑफ साइंस, living things are always in motion, that are of any type. वो मोशन किसी टाइप का हो, बट जो लिविंग थिंग है वो मोशन में होगा. तो अगर हम इस स्टूडेंट्स के मन में ये भर लेते हैं कि नहीं तुम परफेक्ट हो गए, तब वहाँ से डिलोकेशन होगा. हमें उसे ब्रॉड वर्ल्ड दिखाना, नहीं तुमसे आगे ये है, यहाँ से आगे ये है, और इन सबों के साथ तुम एक परफेक्ट पर्सन तभी हो पाओगे जब तुम्हें गुड बिहेवियर होगा, नॉलेज ऑफ रेस्पेक्ट होगा. तो ये हमारे वैल्यू एजुकेशन में आता है, जो कि हमारे एजुकेशनल, हमारे सब्जेक्ट नॉलेज के साथ यह भी बहुत बड़ा वैल्यू रखता है. बट इन वैल्यू एजुकेशन didn't say that only value education also so that we have to laugh with our students, we have to talk with our students, but the difference between students and teachers will also be maintained, because it is seen that at many places, many educational institutions,
it becomes a matter that a student don't respect teachers, and teachers also have problem that students don't respect me. तो many times ऐसा देखा जाता है कि हम तो इस वैल्यू एजुकेशन, इस चेंजिंग टाइम के साथ अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आते हैं, बट हमेशा हमें ध्यान रखना होता है इस वैल्यू एजुकेशन में अगर हम उसके फ्रेंड हैं तो हम उसके टीचर भी हैं। और अगर 40 मिनट का क्लास है एंड इन अ वीक वो 40 into 6 240 मिनट्स का हमारा क्लास है, तो कितना टाइम हमें फ्रेंडली रखना है, कितना टाइम एज ए टीचर रहना है और कितना टाइम एज ए स्टूडेंट रहना। वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। आई डोंट नो सम टीचर्स feel disrespect when I say that we are also students. Very recent story, I can say a story from our institution that any teacher or any student has delivered some speech and he also delivered that teachers have also to learn, and we become very sad that how a student can teach us. तो ऐसा भी हाल में ही हुआ है कि किसी बच्चे ने एक स्पीच दिया टीचर्स डे पे जिसमें उसने टीचर के गुणों का बखान किया और उसने सच्चे टीचर के गुण को बताया और एक टीचर ने भी ऐसा ही स्पीच दिया। तो आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिएगा क्योंकि हमने ये कहा कि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं सोचना हम लोग टीचर हैं, सर हैं, कि हम स्टूडेंट कैसे होंगे। तो हमारे लोगों में बहुत कष्ट आ गया, बहुत गर्मागर्म बहस होने लगी थी, हमने उसे शांत किया। तो वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट कैन टीच मच बेटर देन ए वेल नोन टीचर। एक स्टूडेंट एक वेल नोन टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छा टीच कर सकता है, और जब हम भी स्टूडेंट बनेंगे, हम उससे फ्रेंडली होते हैं, तब हम भी बहुत अच्छा टीच कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये अहम आ जाएगा कि हमसे अच्छा कोई नहीं और ये स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया ये सिखाएगा, तो ये हमारे नैरो थिंकिंग को शो करता है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं अपना ही दूंगी। जो क्वेश्चन साइंस का हो, मैथ्स का हो, हम अपने 9th 10th के हॉस्टल के बच्चे को हमारे विशाल सर पढ़ाते हैं, हमारे संजीव सर पढ़ाते हैं और मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, फिर भी वो नहीं समझते हैं। तो मैं अभिषेक जो क्लास 10 का एक स्टूडेंट है, तो मेरी नज़र में वो बहुत ही शालीन है। टीचर उसे फ्रेंड जरूर बनाते हैं, लेकिन वो टीचर के कंधे पे हाथ रख के नहीं चला होगा, जैसा मेरी नज़र में उसकी छवि है जैसी। तो मैं उस स्टूडेंट को उसके पास भेजती हूँ और हम सबों से बेटर उससे वो स्टूडेंट समझ पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो अपने अकॉर्डिंग, हमारे पास जो नॉलेज है और हमने जैसे सीखा उस अकॉर्डिंग हम सिखाएंगे, और जो अभी करेंट में पढ़ रहा है, अभी सीख रहा है, उसे पता है कि सीखने के लिए किस स्तर तक जाना होगा। क्योंकि हम और आप समझते हैं मैंने 9 में पढ़ा दिया इसे, या 8 में हमने डाइजेशन पढ़ा दिया, अब अगर वो पूछता है इसोफेगस क्या है तो हम और आप डांट देंगे। लेकिन वो स्टूडेंट उसे बताएगा क्योंकि उसको पता है कि
फैक्टराइजेशन 8 से पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है और आपसे पूछ देता है सर मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन में आपने ये दोनों ही क्यों लिया, आप थोड़ी देर के लिए झल्ला जाते हैं, वो स्टूडेंट नहीं झल्लाएगा। तो हमें भी उस स्टूडेंट के माइंड से भी सोचना पड़ता है। अगर ऐसा क्लास में हमारे साथ होता और हमारे टीचर ऐसा बिहेव करते तो हम क्या सोचते। तो ए टीचर मस्ट बी ए थिंकर। एक टीचर को हमेशा एक विचारक बनना पड़ता है, हर बात के पीछे क्या रीजन है, तभी हम उसे हैंडल कर पाते हैं। ए टीचर मस्ट बी एक पेरेंट। आप एक पेरेंट की नज़र से भी सोचें। जैसे हमारे बीच होते हैं, मैं थोड़ा सा उससे हट के आती हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये मैं अपने आप से ले रही हूँ, आप लोग नहीं कीजिएगा। कुछ टाइम हम पढ़ा देते हैं, उसे कुछ मेन पॉइंट्स लिखा दिए या अंडरलाइन करवा दिए, बोल दिए लिख लेने। क्वेश्चन आंसर का टाइम आया तो हमने उसे लिखा दिया और हम आगे बढ़ गए। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, एक जो फॉर्मली टेस्ट हमें लेना है, क्लास टेस्ट, ऑब्जेक्टिव रिवीजन करो, क्लास टेस्ट दे दो। और अभी एग्जाम का टाइम आता है, रोज हम एक चैप्टर उसे देते हैं। आप लोगों में से किन्हीं के बच्चे में भी नहीं पढ़ते होंगे और मैंने तो आज रियलाइज किया है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन रियलाइज किया, कल से रो रहा है मेरा बच्चा। अब SST का एग्जाम है, हमको कुछ नहीं आता क्योंकि मैम ने याद नहीं कर पाया, याद वो नहीं करता है, याद मैम करवाती है। तो ये भी उन्हीं की महानता है, या करवा भी दिए वो नहीं किया, अब वो रो रहा है। तो हमें एज ए पेरेंट्स भी सोचना है, अगर मेरा ही बच्चा हो, हम अभी उसे अपने बचाव में जिसमें हो या अपने समझ की कमी में, अपने तरीके की कमी में ईजी देते जा रहे हैं और जब एग्जाम का टाइम आया, 15 डेज बचा, रोज याद करो, रोज पीटे, रोज रोके, तो हमारे प्रति उसका बहुत अच्छा एटीट्यूड है। अब इस वैल्यू एजुकेशन में एटीट्यूड का ही सबसे बड़ा रोल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन वैल्यू एजुकेशन इज डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स में पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करना है। अगर हम पूरे 1.5 मंथ फेवरेट टीचर ऑफ द स्टूडेंट हैं और एग्जाम के टाइम में फिर वो हमें कोसे, तो फिर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता। वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश रहता है, सारा स्टूडेंट बहुत खुश। हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिला है, कुछ लर्न करने नहीं मिला, इतना लिखने मिला। और वो एग्जाम के पहले से पेरेंट्स भी आते हैं तो पढ़ते हैं, कुछ पेरेंट्स खुश होते हैं। तो 3 कैटेगरी के पेरेंट्स हमारे पास होते हैं। एक जिनको आप मान लीजिए पढ़ लिख के भी इलिटरेट है, इट मीन्स उन्हें इस पढ़ाई का बच्चे के पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं बट वो स्कूल ट्यूशन कोचिंग पर डिपेंडेंट हैं और उन्हें ओनली रिजल्ट देखना है, रिजल्ट के अलावा उन्हें कोई काम नहीं। बच्चा पढ़ रहा है, सो रहा है, खेलने जा रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे की माँ कहीं भी तो देखेंगे रिजल्ट नहीं आएगा तब पीटेंगे, पहले वो नहीं बोलेंगे। दूसरे कैटेगरी के हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो कभी नहीं देखते हैं, कहते हैं भगवान भरोसे, मेरा काम पैसा देना है, अब उसका धर्म जानेगा। तीसरे कैटेगरी के हैं जो देखते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं, हम टीचर्स लोगों का भी टेस्ट लेते हैं, क्या पढ़ाए, क्या लिखाए, कैसे चेक किए। तो वैसे लोग जो हमारे बेस्ट कैटेगरी में आते हैं
लेकिन अगर हम तह में जाकर देखें तो वो जो 20% पेरेंट्स हैं जो एग्जामिन करते हैं वो हमारे उस पैटर्न से खुश नहीं है और वो डायरेक्ट कहते हैं मैडम ये चीज़ सब दिन क्यों नहीं होता, ये एग्जाम में क्यों होता है। अभी स्टैंडर्ड 8 की एक बच्ची है, दो भाई बहन है, ये श्री उसके फादर के मैडम आज तो अभी 3 दिन से वो रात भर जगते हैं, हम सोते हैं तब भी पढ़ते रहती है, जगते हैं तब भी पढ़ते रहती है, फिर उठ जाती है और बाकी दिन पढ़ती नहीं। वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन समझदार है। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, अगर ये चीज़ सब दिन हो तब तो बच्चे ज़्यादा पढ़ने की हो, जब एग्जाम का टाइम आता है वो 1 वीक जब मुझे पनिश किया जाता है तब वो रात भर भी पढ़ते हैं, फिर भी वो डिफॉल्टर भी होते हैं और दुखी जाते हैं। और तब जब पेरेंट्स का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है, वो जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमारे स्टूडेंट के मन में भी क्वेश्चन मार्क आता है हमारे, और वहाँ पे एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे प्रति हमारे स्टूडेंट्स का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और वी शुड हैव डिवोटेड टीचर, वी कांट बी गुरु। हम लोग सभी जानते हैं हम गुरु नहीं हो सकते, बट वी मस्ट हैव टीचर, वी मस्ट बी टीचर। हमें टीचर अवश्य करना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। और वही कल की एक कहानी है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, पता है हमारे लोगों को। एक बच्ची परसों SST के एग्जाम में स्टैंडर्ड 10 की बहुत ही बैड परफॉर्म करने के कारण कल वो इतनी नर्वस हुई तो घर से निकली तो डर से स्कूल नहीं आई, वो कहीं जाके अकेले में बैठ गई। तो यहाँ से थोड़ा सा ये भी आता है कि हमें ऑल मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन देना है, बट बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी जगाना है। और वो आत्मविश्वास कहीं न कहीं हमारे निरंतर प्रयास से ही जगेगा, पेरेंट्स नहीं जगा सकते। उन्हें फुर्सत नहीं है, उन्हें नॉलेज भी नहीं है। पता ही है हम लोगों को, कल हम कितने परेशान थे। अगर एक लड़का घर से निकल के स्कूल नहीं आवे तो हमारी परेशानी बहुत कम होती है, वो भी 10 का अगर 1-2 का हो। तो कल एक लड़की जब नहीं आई और डर से कि फिर हम नहीं अच्छा राइट कर पाएंगे, हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और वो कहीं नर्वस होके बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने उसके फादर को ही आधे घंटे बैठा कर समझाया, सर आप प्रॉमिस कीजिए आप उसे डांटेंगे नहीं। वो कहीं जाके बैठ गई, आप उसे नहीं डांटेंगे, आप उसकी नहीं, हम तो मैडम नहीं डांटेंगे, उसकी माँ नहीं छोड़े मार। हम बोले आप उसकी माँ को नहीं लाइए, आज ही नहीं, बहुत गुस्से में है, बहुत नर्वस हो गई, उसकी माँ की बात कर रहा है। तो दोनों चीज़ है, हमें वैल्यू एजुकेशन को देना ही है, बच्ची बहुत शालीन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं हमें एक मिनिमम सब्जेक्ट नॉलेज भी देना है जिससे वो बहुत खराब है। और इस वैल्यू एजुकेशन में ढेर सारी बातें हमें अपने बच्चों को सिखाना है। इस ट्रेनिंग को हमें बहुत ही सीरियस लेना है। इसके स्लाइड्स इसका तैयार करके रखे हुए हैं रोहित रंजन सर, वो स्लाइड्स को डिस्क्राइब करेंगे हमारे भी, जिससे कि हम आसानी से वे टू डेवलप वैल्यू इन स्टूडेंट्स में वैल्यू को डेवलप करने के वे को हम सीखेंगे और उसे हर संभव इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि इन सभी वैल्यू एजुकेशन के सेंटर में हमारा एकेडमिक्स भी है, नॉलेज एजुकेशन भी है, वो बुकिश नॉलेज भी है। इस सेंटर के इर्द गिर्द हमारा सभी वैल्यू एजुकेशन है। हमने बच्चों को सारा एजुकेशन दे दिया और अगर उसके पास एकेडमिक्स नहीं है तो फिर हम फेल होते हैं। तो मेन सेंटर हमारा एकेडमिक्स सब्जेक्ट नॉलेज होता है और उसी से ऑल वैल्यू एजुकेशन को हम रिलेट कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन तो एक डांस क्लास में, एक म्यूजिक क्लास में और सबसे ज़्यादा एक स्पोर्ट जो कि आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें भी बहुत अच्छा दिया जा सकता है। लेकिन वैल्यू एजुकेशन हमसे तब होगा when we use values in our life, because if we say students to remain in discipline, but when we will go class 10 minutes late, then those students will not follow our teachings. वो हमारे उपदेश को कभी नहीं मानेंगे। तो ये वैल्यू ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और हमने तो कहा ही कि हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी रोज पढ़ते हैं। आज इस ट्रेनिंग में जो भी आइडिया डिलीवर करना है इसके लिए इन्होंने भी पढ़ा है, इसके लिए मैंने भी पढ़ा है। आप जो सब्जेक्ट टीच करते हैं उसमें भी डे बाय डे मेनी थिंग्स ऐड हो रहे हैं। तो हम सभी पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो आउटडेटेड होता है, वो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं। और ये भी हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे पुराने टीचर जो वेल नोन टीचर हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, आज आपके यहाँ क्योंकि आप लोगों ने ऐसा करेक्ट वे ऑफ टीचिंग अपना रखा है कि अगर ऐसे टीचर आते हैं तो आपके स्टूडेंट्स उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं और उन्हें रुकने नहीं देते हैं, उन्हें अपना टीचर नहीं मानते। एक बहुत ही एज टीचर जो मेरे भी टीचर रह चुके हो, मतलब मेरे एज के बच्चों के भी रह चुके हो, वो आए थे लास्ट सेशन में साइंस के लिए। नॉलेज उनको कम है ऐसी बात नहीं है, पूरा नॉलेज है और वो बट उनका फिक्स ट्रेडिशन। तो जब हमने चेंजिंग फिक्स ट्रेडिशन में हम फिक्स प्लेस पर चल सकते और हमारे पास डाइवर्स ट्रेडिशन है। अगर हमारा एक ट्रेडिशन होगा पढ़ाने का और हम अपने आप को बेस्ट टीचर मान लेंगे कि हमारा वे बेस्ट वे है, तो फिर हम सरवाइव नहीं करते। तो सरवाइव करने के लिए यह चेंज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सब जगह चेंज लाना होगा। ये नहीं है कि ओनली टीचिंग में ही हमें अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को टाइम टू टाइम चेंज करना है। हमारे सोच में चेंज आता है, हमारे पहनावे में आता है, हमारे खान पान में आता है, टाइम के साथ सब में चेंज आ रहा है। तो जिनमें चेंजिंग नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं। और दिनांका सर सबसे अच्छा समझा सकते हैं सर्वाइवल के लिए चेंजिंग कैसे बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बायो भी बताता है कि जिनमें चेंज नहीं हुआ वो एक्सटिंक्ट हो चुके, मिलियंस ऑफ स्पीशीज। क्या दिनांका सर एक्सटिंक्ट हो चुके? क्यों? क्योंकि उनमें स्ट्रगल करने की कैपेसिटी नहीं है। जो स्ट्रगल नहीं करेंगे, जिनमें रेस्ट करने का आइडिया आ जाएगा। रेस्ट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जैसे ही हमारे मन में रेस्ट का नॉलेज आता है वहाँ से डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है।
बच्चे भी नहीं सीखते हैं और कल के डेट में हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो बच्चे को ये सिखाकर कि बाबू बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हम उससे रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस उसे दिखाना होगा कि हम भी एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तुम भी करो। और बिना सिखाए, बिना इस स्टेटमेंट को लाए तब वो इस चीज को सीखता है। जैसे कि हम अभी हाल का एक और एग्जाम्पल देते हैं। कुछ दिन पहले कोई ये धार्मिक टूर था, गए मेरे माँ बाबू की। फिर अभी आया तो मेरा छोटा सा है, तो कहा मैं तुमको भी तो मन करता होगा घूमने का, लेकिन तुमको तो काम ढेर सारा है। अच्छा चिंता मत करो, जब हम बड़े होंगे हम काम करेंगे तब हम तुमको घूमने भेजा करेंगे। तो ये तो मैंने सिखाया नहीं। तो बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फ्रॉम स्पीच लर्निंग। अगर हम उसे रोज बोल के समझावें, ये करो ये अच्छा होता है, वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन उस बोलने के साथ हमें उसे दिखाना भी होता है कि हम भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम भी वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास भी वैल्यूज हैं, हमारे पास भी हमसे सीनियर टीचर हैं, हम उनका भी वैल्यू देते हैं। तो कहीं ना कहीं देख कर ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाते हैं। बाकी जो हमारे रिकॉर्डेड वे टू डेवलप एजुकेशन है, मैं रोहित सर को बुलाना चाहूँगी इसे डिलीवर करने के लिए। थैंक्स। सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का ये इस सेशन का पहला इनॉफ ट्रेनिंग, और जो टॉपिक हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं ये सीबीएसई ने ऑलरेडी इसके लिए एक जो है ट्रेनिंग ऑलरेडी करवा रखा है, जो जनवरी 22 तारीख को होगी। वैल्यू एजुकेशन बहुत मायनों में जरूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, इसकी जरूरत सभी के लिए एक जैसा है। अगर हम खुद की बात करें, हम सभी की बात करें, तो सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं, मनुष्य, और इंसान का इतिहास बड़ा लंबा है। हम उन प्राणियों में से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डेवलप किया, और इसके बहुत सारे रीजन में से एक रीजन था कि हमने अपने अंदर वो वैल्यूएबल चेंजेस को लगातार अडॉप्ट किया है। हमारे सराउंडिंग्स हैं, कभी हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, तो कभी हमें ये हमारे जेनरेशन से हमें मिलता है, कभी हमें माइथोलॉजीज का सहारा लेना पड़ता है, रिलीजन्स के भी इम्पोर्टेंट रोल है। जब इस स्लाइड्स को हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो हर एस्पेक्ट में हम वैल्यूज के इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि कहाँ से क्या हमें कंट्रीब्यूट करता है और किस एस्पेक्ट को ये हमें टच करता है। वैल्यू बहुत मायनों में इम्पोर्टेंट है, और इस पे जबरदस्त फिलॉसफी भी छिड़ी हुई। बहुत लोगों ने अपनी फिलॉसफी इस पे दी। मैंने जो स्लाइड्स बनाया उसमें आप लोगों को बहुत सारे डेफिनेशंस भी मिलेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। जो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वैल्यूज के बारे में कि इसको सबसे आसान भाषा में कैसे समझें, तो हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो करते हैं, या फिर हमारा जो कैरेक्टर है, इन सब चीजों का संगम ही वैल्यू है। ये सबसे आसान भाषा, इसको प्लेटो ने ये प्रोनाउंस किया था।
ये उनके द्वारा प्रपोज किया हुआ ये वैल्यू के ऊपर में स्टेटमेंट है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है, जब हम कोई भी गतिविधि को कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी सोच समझ, हमारा ब्रेन, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है और इन्हीं सारे चीजों का संगम को ही हम वैल्यूज बोलते हैं। वैल्यूज हमारे डिसीजन लेने के वक्त भी एक्ट करता है। हम खड़े हैं तब भी लोगों में वैल्यू दिखता है, हम कुछ ना कर रहे हो तब भी हमें वैल्यूज दिखता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस पेस से हम अब अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें कि मॉडर्नाइजेशन हुआ, सोशलाइजेशन हुआ और बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन, तो इन चीजों में जिस चीज को सबसे ज्यादा हैराश हुआ, जो सबसे ज्यादा डिग्रेड हुआ, जिसका सबसे ज्यादा डाउनफॉल हुआ, वो है वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज लोगों के गिरते ही जा रहे हैं और शिक्षा और वैल्यूज दोनों जो है ना, एक इंसान के आगे बढ़ने का वो चक्का है। जब दोनों सही से काम करेगा तब हम प्रॉपरली आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए जब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आई अभी रिसेंटली, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, तो उसमें वैल्यू एजुकेशन को बहुत एम्फेसाइज किया गया, इस पे बहुत जोर दिया गया। क्योंकि हम एज ए टीचर जो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, वो हम उनको इसलिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम इस एग्जाम में इतने मार्क्स को ले आओ। एज ए टीचर हमारा ये टेम्पररी मोटिव है, परमानेंट मोटिव नहीं है। हम उन बच्चों को इसलिए ट्रेन कर रहे हैं, हमारे सामने वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहेंगे, 12 साल रहेंगे, 15 साल आपके सामने वो बच्चे रहेंगे। उसके बाद जो अपना लाइफ प्रोसेस को जो आगे बढ़ाएंगे, उनमें उनकी शैली कैसी होगी, वो किस चीज को अचीव करेंगे, इसका बेस हम बच्चों के साथ काम करके हम डेवलप करेंगे। और इसीलिए वैल्यूज का स्थान अहम है। जब हम बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने हम उसे अलग अलग वैल्यूज भी सिखा रहे होते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है कि एज ए टीचर हम बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं तो हमें भी कुछ वैल्यूज होने चाहिए, वो होना भी बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू की अगर बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट, मोटिवेशन और तर्क करने की क्षमता, कि बच्चा चीजों को तर्क कर सके, ये इन चीजों का डेवलप होना बहुत जरूरी है। और इन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वैल्यूज का। और इसलिए भी ये जो हम लोगों का टॉपिक है ये बहुत अहम हो जाता है। और वैल्यूज हम सीखते कहाँ से, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं जहां से हम ग्रैस्प करते हैं इन वैल्यूज को। फैमिली सबसे पहला स्कूल है कि बच्चा अपने परिवार में, अपने फैमिली में सबसे पहले वैल्यूज को सीखता है। जो हमारे माता पिता और उनके जो माता पिता थे, उन्होंने जो वैल्यूज को, जो बिलीव्स को, जो कस्टम्स को सेट किया था, हम उन्हीं को ग्रैस्प करके हम आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, वातावरण में क्या चल रहा है, दोस्तों का बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। आपके सामने बच्चे 5 से 6 घंटे रहते हैं और इस वातावरण में वो 24 घंटे रहते हैं। और इस वातावरण में मौजूद बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये लगातार उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, जो उनके वैल्यूज को हिट करता है। इसके अलावा आज के डेट में अगर किसी भी चीज की बात करें और मास मीडिया की बात ना हो, ये नहीं होनी चाहिए। मास मीडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हर आदमी। एक रिसेंट सर्वे आया और रिसेंट सर्वे में बताया कि ये भारत का आंकड़ा है कि औसतन ऑन एन एवरेज इंडिया में हर एक व्यक्ति अपने दिन का 8 घंटा मोबाइल फोन के ऊपर में स्पेंड करता है। 8 घंटा। अब आप सोच लो कि औसतन जो एवरेज लाइफ स्पेन है, हमारा साइंस बोलता है वो 60 ईयर। और एक आदमी अपने जिंदगी का 20 बहुमूल्य साल जो है अब वो फोन पे वेस्ट कर देता है। यानी कि बाकी काम पे, फोन पे वो 20 साल वेस्ट करता है, 15 से 20 साल वो वेस्ट करता है सोते हुए, स्लीप नेसेसरी एस्पेक्ट है। तो 40 साल अपने जिंदगी को लोग ऐसे वेस्ट कर दिया। 10 साल उस अवस्था में लोग रहता है कि जहां सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, वो बच्चे रहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को हम आगे कहां बढ़ा रहे हैं? हम कैसे बोले कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं? इस मॉडर्नाइजेशन, इस सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर में पड़ा है। एक और सर्वे का मैं जिक्र करता
बताऊं, अब ज्यादातर आप देखोगे कि लोग ऐसे करके फोन चलाते हैं, ऐसे करके फोन चलाते हैं। तो एक रिसेंट सर्वे जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया, उन्होंने बताया कि हजारों साल पहले हम झुक के 4 पैर पे चलते थे तो हमारा बैकबोन बाहर था। दिगंता सर अगर हम गलत होंगे तो करेक्ट कर दीजिएगा, हम बायो के नहीं है, बस जो रिसेंट सर्वे आया हम उसके अकॉर्डिंग जो है बोल रहे हैं कि जो बहुत साल पहले हम जब 4 पैरों पे चलते थे तो हमारा बैकबोन बाहर था, जो पूंछ हुआ करता था, जानवरों में अभी वो है, वो ऊपर उठे और हम सीधे होके चलने लगे तो वो पूंछ स्ट्रेट हो गया और वो हम लोगों का जो है वो वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो गया, बैकबोन बन गया हमारा। और अब क्या हो रहा है कि अब हम दिन का एवरेज टाइम जो है ना वो गर्दन झुका के ऐसे यूज कर रहे हैं। तो रिसेंट सर्वे बताता है कि जो आने वाले जनरेशन होंगे उनपे इसका 3 असर पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हम दिन भर में थंब का करते हैं तो हमारी 2 उंगली गायब हो जाएगी, 3 उंगली ही रहेगी। जो जेनेटिक म्यूटेशंस होगा उसमें ये 2 उंगली गायब हो जाएगी, इसकी बहुत कम यूज होगी, बस या फिर ये 2 रहे, ये 2 गायब हो जाए, 3 उंगली रहने वाली है। ये उंगली साथ ये ताकतवर होता जा रहा है। आप मुट्ठी बांधो, देखो आपके हाथ में सबसे ज्यादा तगड़ा ये वाला फिंगर है। तो एक ये सर्वे है। दूसरा सर्वे बताया कि जो डरावना सा लगता है कि आप सोचिए कि ये वर्टिब्रा, चूंकि हम गर्दन से ऐसे झुकेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और एज एन हॉर्न सींग की तरह वो ऊपर से निकलेगा। ये रिसेंट सर्वे है। तो ये मास मीडिया का बहुत ज्यादा असर है हमारे सोशल प्रोसेस के ऊपर में, हमारे जेनेटिक के ऊपर में भी। अब ये सर्वे है, ये हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि भाई हम यूज कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया या फिर ये मास मीडिया, ये इंटरनेट, ये अपने आप में एक वरदान है और साथ ही साथ ये श्राप भी है, ये कर्ज भी है, ये बहुत बड़ा कर्ज है। कर्ज इसलिए है कि आप गूगल कर लो, बम बनाने के तरीके आपको 18 तरीके मिल जाते हैं, बम बना सकते हो घर पे बैठ कर। ये इसलिए आविष्कार। तो इसीलिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब किसी चीज का इस्तेमाल करें, किसी चीज को यूज करें, तो उसमें हमारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ट्रिगर करता है। और ये सारी आजकल मास मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी सोच को, हमारे थिंकिंग को, हमारे फैशंस को, हमारे बोलने चालने की शैली को, हमारे रहन सहन को, और अब हमारे सोसाइटी को भी वो अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है। हम घर में भी जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बातों में, हमारी एक्टिविटी में ये मास मीडिया का जो है ना ये इन्फ्लुएंस करता है, वो झलकता है ये चीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी वैल्यूज ट्रिगर हो रहा है, भाई निगेटिवली हो जाए या पॉजिटिवली हो जाए। फिर बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन और वैल्यूज, हम इन दोनों को अलग नहीं रख सकते। ये पुराना इतिहास रहा है, शुरू से ही हमारे देश को ही क्या कि दुनिया के हम किसी भी देश में को ले लें तो शिक्षा और जो मूल्यों का जो संगम है ना, जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, ये हमेशा से साथ चला। क्योंकि अब बिना किसी को वैल्यूज सिखाए हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, हम उसको आने वाले लाइफ के लिए तैयार नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें रिलीजन्स और माइथोलॉजीज के भी एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं सिचुएशन को समझने के लिए। अब आप सोच के देखिए, रावण बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक और दिक्कत है कि हम जब भी माइथोलॉजी की बात करते हैं, आपको 80% लोग आज के डेट में ये कहता हुआ मिल जाएगा कि कौन दिखाया है, हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। ये बात जो है ना, ये बात ही मेरे नजर से अगर देखें तो ये बात एकदम से जो है डिबेट करने लायक है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि माइथोलॉजी हो या ना हो, हमें उस कैरेक्टर से नहीं मतलब है कि हम इस डिबेट में फंसते ही क्यों है कि वो था या नहीं था। हमें इस डिबेट में फंसना है, हमें इस बात में डिबेट करना है कि उनके वैल्यूज क्या है, वहां से हमें नॉलेज क्या मिलता है, हम किन चीजों को सीख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हम वहां से ग्रैस्प,
बस 20% लोग जो है ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से माइथोलॉजी को देखते हैं। मैंने रावण का जिक्र किया, 10 सर वाला बोलते हैं कि 10 सर था उसके पास, नॉलेज की तो कहीं से कमी नहीं थी, दुनिया भर का ज्ञान उसके पास था, लेकिन फिर भी माइथोलॉजी में वो विलेन है। इतनी सारी ज्ञान को लेकर के वो विलेन है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास वैल्यूज नहीं था। मॉडर्न डे में बात करें तो आपको ऐसे और सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। टेररिस्ट, जो एक टेररिस्ट था जिसने वर्ल्ड टावर उड़ा दिया था अमेरिका का, ओसामा बिन लादेन, ही वाज एन आर्टिस्ट, वो एक इंजीनियर था और टॉपर था अपने यूनिवर्सिटी का। अपने यूनिवर्सिटी का ओसामा बिन लादेन वो टॉपर था। पहले उसने इंजीनियरिंग की और फिर उसने फिलॉसफी ऑनर्स भी कर रखा और उसके बाद भी वो उसने चुना क्या, किस चीज को चूज किया? उसने चूज किया वायलेंस। कहां पे क्यों दिक्कत थी? शायद कहीं वैल्यूज की कमी थी। तो एजुकेशन हमें परफेक्शन नहीं देता है, हमें एजुकेशन के साथ साथ जो है जब हम वैल्यूज को लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी हमें या फिर हम जिस रोल में हैं हम उनमें परफेक्शन ला पाएंगे। और यही हमारा रोल है एज ए टीचर। एज ए टीचर हम जब अपने वर्क प्लेस पे आते हैं, हम टीचिंग के प्रोफेशन में जब हम आते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे हमारा काम जब शुरू हो जाता है तो अगले 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हम लगातार इसी काम को कर रहे होते हैं कि सामने वाले को हम भविष्य के लिए लड़ना सिखाते हैं, जिसका एक पार्ट है कि हम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करें। सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल बाकी और चीजें भी है जिसमें से एक है वैल्यू। तो और आप एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, पंचतंत्र की कहानियां, और मुझे एकदम भरोसा है आप सबने पढ़ा होगा। सभी लोग ने जो आज से 15 साल 20 साल पहले से जो है सबने इस पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ा होगा। और एक फैक्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब का अगर अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट हुआ है तो वो पंचतंत्र की किताब है। विष्णु शर्मा ने जब वो किताब लिखी तो भारत में बहुत तेजी से वो किताब पॉपुलर हुआ। भारत में ही उसके जो है 2000 ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज में। पंचतंत्र कहानी के सिर्फ इंडिया में 2000 जो है उसके ट्रांसलेशन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लोग आए, अरबी आए, पर्शियन आए, ईरानियन आए, टर्की आए, इंग्लैंड आए, फ्रेंच आए, जितने भी बाहरी लोग आए सबने अपने बच्चों के लिए जो है वो पंचतंत्र को यहाँ से ट्रांसलेट करके वो ले गए। क्यों इतना दुनिया भर में पंचतंत्र पॉपुलर हुआ? वो इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि सारी कहानी में जब सारा कहानी एंड होता है वहां एक मॉरल वैल्यू छुपा हुआ होता है। हर कहानी में कहीं पर वो पूरी स्टोरी एंड होती है ऑनेस्टी पे, कहीं पे वो एंड होता है जस्टिस पे, कहीं एंड होता है इक्वालिटी पे। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट पर वो स्टोरी खत्म होता था और स्टोरीज का बच्चों के ऊपर में सबसे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड, आप क्लास में बोलिए कि आज स्टोरी सुनाएंगे, बच्चे बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड होते हैं। हाँ ठीक है, स्टोरीज। तो दुनिया भर के बच्चों को पंचतंत्र ने इम्पैक्ट किया, इसलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड बुक है पंचतंत्र की, क्योंकि वहां वैल्यूज छिपी हुई। तो ज्यादा टाइम आप नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग सीधा स्लाइड्स पे आते हैं, आगे बढ़ाएंगे। जो आपका पहला स्लाइड्स है, यहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों का जो है ये अपने शब्दों में उन्होंने डिफाइन किया कि क्या है वैल्यूज। एम रूकी 1960s में इन्होंने किताब लिखी थी द ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर वैल्यूज। उसमें इन्होंने वैल्यूज को डिफाइन किया कि एक ग्लोबल बिलीफ है, हमारे अंदर का जो भरोसा ही है हर चीज में, और जो एक्सपीरियंस, जब भरोसा और एक्सपीरियंस जब एक साथ मिलता है तो वो बिलीफ, तो वो वैल्यूज में कन्वर्ट होता है। हम सही तरीके से जज कर पाते हैं सिचुएशंस को। एरिस्टोटल, अरस्तु, इनका कहना है कि ये शेयर्ड आइडियाज है। अब अरस्तु और प्लेटो, ये दोनों में कंफ्लिक्ट है। आप दोनों का डेफिनेशन अगर देखो तो थोड़ा सा ये कंफ्लिक्ट कहते हैं। अरस्तु बोलते हैं कि ये शेयर्ड आइडियाज है, जबकि प्लेटो बोलते हैं ये कंसेप्शन। अब आइडियाज और कंसेप्शन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
आइडियाज जो है वो बाहर की चीजों से ज्यादा ट्रिगर होता है। यानी कि अरस्तु जो है वो वैल्यूज को बताते हैं कि वो हमारे शरीर के बाहर की चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। प्लेटो बोलते हैं नहीं, वैल्यूज जो है वो बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा डेवलप होता है। तो ये डिबेट का विषय है। आप इस पे हम आप क्या ही बोले, लेकिन दोनों के अलग अलग है। तो एक का कहना है कि ये शेयर्ड आइडियाज है। हम अपने डेली लाइफ में जो सोचते हैं, कहाँ बैठते हैं, किनसे बातें करते हैं, क्या करते हैं, हम इन सब के आइडियाज को जब शेयर करते हैं तो हमारा वैल्यूज बिल्ड होता है हमारे अंदर। ये बात अरस्तु ने बताया। प्लाटो ने बोला कि नहीं, हम बाहर से शेयर नहीं करते हैं, ये आइडियाज जो है ये हमारे कंसेप्शन में क्रिएट होता है, हम बाहर की चीजों को कलेक्ट जरूर करते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर एक एग्जांपल के लिए ले लें तो प्लेटो का आसान एग्जांपल समझने के लिए उनके डेफिनेशन को ये है कि अगर बाहर की चीजों से ट्रिगर होता तो विभीषण रावण के साथ रह करके भी एक अच्छा इंसान था, हमेशा उसकी बात होती है। तो यहाँ पर यही एग्जांपल जो है वो प्लेटो देना चाहते हैं। तो ये अलग अलग डेफिनेशन से और बहुत सारे डेफिनेशन वैल्यूज को लेकर के हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज क्या क्या है, पहले वैल्यूज पे बात करेंगे और फिर हम लोग वैल्यू एजुकेशन पे आएंगे। तो वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। हर व्यक्ति में वैल्यूज अलग अलग है, सबके वैल्यूज एक जैसे नहीं हो सकते। सबका एनवायरनमेंट अलग है, परिवेश अलग है, माहौल अलग है, अलग तरीके की सोच के साथ है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और इसीलिए सबके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर जो वैल्यूज एक बार डेवलप हो जाता है और हम जब मैच्योरिटी को हिट करते हैं तो वो वैल्यूज हमारे अंदर परमानेंट हो जाता है। फिर हम उसको ज्यादा बदल नहीं सकते हैं, ज्यादा उसमें बड़ा चेंजेस को हम नहीं ला सकते। तीसरा है कि वैल्यूज हमें वो पर्सपेक्टिव देता है, हमें वो एंगल प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी चीज को सही और गलत तरीके में जज कर सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। ये चॉइस हमारे लिए वो आसान बना देता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब भी आपको चॉइस करना पड़े दो अच्छे लोगों के बीच में तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपको चॉइस करना पड़े एक अच्छे एक बुरे में तो सबसे आसान डिसीजन, सबसे अच्छा आसान चॉइस यही होता है। लेकिन मुश्किल और डिफिकल्ट तब हो जाता है जब दो बुरे में से एक को चुनना पड़े। तो ऐसे समय में हमारा वैल्यूज हमें गाइड करता है, हमें वो पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सोसाइटीज में वैल्यूज का एक रोल है। हम सबको इंटीग्रेट करके चले, सबको मिला करके चले, सबको जोड़ करके चले, सोशल रिलेशंस को बिल्डअप करें। इसमें हमारे लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, जो कंडक्ट ऑफ सोशल लाइफ है, इसमें वैल्यूज हमें गाइड करता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके वैल्यूज ही आपको जवाब देते हैं। तो वहां पे वैल्यूज हमें गाइड करते हैं। इसके अलावा जो एक एटीट्यूड किसी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान के पास एटीट्यूड होता है, जानवरों में नहीं होता। तो हमारे पास जो ये एटीट्यूड है ये कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं सामने वाले से, और यही एटीट्यूड कन्वर्ट होता है बिहेवियर। तो इन सब चीजों को ट्रिगर करता है हमारा वैल्यू। अब क्या चीजें हैं जो कौन सा फैक्टर है जो वैल्यूज को अलग अलग एंगल से अफेक्ट करता है। देखिए तो फैमिली सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। एक आम इंसान अपना सबसे ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ स्पेंड करता है। आप बच्चों के सामने 6 घंटे से 7 घंटे रहते हो और यही 6-7 घंटे बच्चे भी आपके सामने रहते हैं, लेकिन बचे हुए टाइम वो अपने परिवार के साथ निकालते हैं। तो फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम सब का परिवार है और जब हम स्कूल में हैं तो हम भी यहाँ भी एक परिवार है। तो जब हम एज अ फैमिली ट्रीट करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाले के साथ साथ हमारा वैल्यूज भी अप रहे, तो उससे पॉजिटिविटी मेंटेन रहे हमारे इर्द गिर्द। दूसरा चीज है फ्रेंड्स, कि हालांकि ये फ्रेंड्स वाला ऑप्शन जो है फिर यहाँ पे डिबेट हो जाएगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत लोग का ये भी कहना है कि फ्रेंड्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर वही एग्जाम्पल आ जाएगा कि विभीषण रावण के साथ भी ठीक था और कैकेयी राम के साथ भी बुरी निकल गई। तो अगर दोस्तों का और माहौल का इतना असर होता तो ये दोनों
सबसे ज्यादा एग्जांपल दिए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स वाला हालांकि डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो पड़ता है। हम सब पीयर्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, और जिंदगी का एक अहम हिस्सा अच्छा और बुरा दोनों हम दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज को जो है ये बिल्कुल भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट, हम अपना ज्यादा वक्त किस तरह के एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं, क्या यहाँ पॉजिटिविटी है, क्या ये निगेटिव एनवायरनमेंट में हम खुद को रखे हुए हैं। तो ये एनवायरनमेंट है जो असर करता है। आप लोग भी अपने घर में देखिए, एक और सर्वे की मैं बात करता हूँ कि अभी प्रेजेंट में दुनिया में 60% लोग डिप्रेस, 60% लोग अभी प्रेजेंट में पूरे दुनिया में वो डिप्रेस है, यानी कि 800 करोड़ आबादी है इस दुनिया की, जिसमें से करीब करीब 500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेस है अंदर से। और अब ये चेक करिए कि आपके घर में भी कहीं कोई ऐसा तो नहीं है। और एक्सपर्ट बोलते हैं कि बड़ा आसान तरीका है, देखिए कि आपके घर में कोई हर दिन कमरा में लाइट ऑफ करके पड़ा रहता है क्या, वो निगेटिविटी उससे इन्फ्लुएंस होती है। अगर आपके बच्चे घर में लाइट ऑफ करके दिन में अगर पड़ा रहता है, वो अंदर से इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी चीज से, कोई चीज उसको अंदर में खा रहा है, वो टेंशन में है, बातें हम कम करते हैं, इतना क्विक टाइम निकल जाता है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से समय भाग रहा है। हम 8 घंटा यहाँ जब टाइम स्पेंड करके घर जाते हैं तो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तो हर चीजों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। और ऐसे में ही इनलाइटन हमें करता है ये नए अपडेट्स, जैसे कि जब मुझे पता, अब मुझे ये कैसे किसी को समझे कि वो डिप्रेस है कि नहीं, तो उसके कुछ क्लू दिया साइकोलॉजिस्ट ने कि आप किस तरह से समझ सकते हैं। एक कम तरीका, मतलब कम समय में आप सामने वाले को देख लो कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, और हम समझ सकते हैं कि क्या वो डिप्रेस भी है। डिप्रेशन सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी और बहुत तेजी से फैल रही है, और ये धीरे धीरे जो है हम लोगों को अपने चपेट में लेता है। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ 4 लोग नेगेटिव बातें ही हर दिन बोलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर में होता है। इसके अलावा कल्चर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वर्ड है जहां जो आपको हर ब्लैंक में मिलेगा, हर कड़ी को जोड़ता हुआ मिलेगा। आप मोटिवेशन की बात करो, वहां पे कल्चर आएगा। आप एजुकेशन की बात करो, कल्चर आएगा। नॉलेज की बात करो, कल्चर आएगा। वैल्यूज की बात करो तो भी वहां पे कल्चर आएंगे। सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया में करीब 8000 अप्रोक्सीमेटली 1000 कल्चर परफॉर्म होते हैं। इतने कल्चर के लोग हमारे हैं। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके के वैल्यूज हैं, और लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं, और वो चीजें आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा स्कूल का स्थान, यहाँ पे स्कूल से ऊपर ये सारी चीजें हैं, ये जो कुछ भी है ये नंबरिंग में है। तो स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग स्कूल में आकर के पढ़ते हैं, सीखते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, खाने पीने से लेकर के, मतलब एक एवरेज एक्टिविटी हम स्कूल में कर लेते हैं। तो ये भी हमारे वैल्यूज को अफेक्ट करता है। फिर मास मीडिया पे मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। सोर्सेज विद इन द सोसाइटी, हमारे समाज में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें निगेटिवली और पॉजिटिवली हमें ट्रिगर करता है, हमें अफेक्ट करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है। और आखिर में है हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, कि कभी कभार हम ये सोचते हैं कि वे अच्छे वैल्यूज को कैसे डेवलप करें। आप सामने वाले को समझा नहीं सकता, बात से उसको नहीं समझा सकते। अगर आप किसी को ये समझाओ कि ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी है, अच्छी चीज है, आप ऑनेस्टी को अपना लो, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके कोर को इस वर्ड ने, इस सेंटेंस ने हिट नहीं किया। तो ये ऑनेस्टी वर्ड, ये इक्वालिटी वर्ड, ये चीजें उस सामने वाले व्यक्ति के जब कोर को हिट करता है, जब अंदर से उसको लगता है, तभी वो उसको क्या करता है, इनकैलकुलेट करता है, उसको अपनाता है। और यहाँ पर हमारा मदद हमारा धर्म करता है, हमारा रिलीजन करता है। दुनिया भर में 5000 से ज्यादा धर्म है, और सारे धर्म, एक भी धर्म दुनिया में, एक भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो निगेटिव वैल्यूज को जो है वो फैला रहा है। एक भी धर्म ऐसा नहीं है। अगर रहता है ऐसा तो वो अभी तक नहीं रहता। सारे धर्म को अगर आप उसका अध्ययन करो, उसके स्क्रिप्चर्स को निकालते हो, या फिर उसको जब पढ़ते हो, तो वहां से आपको जो है वो पॉजिटिविटी ही वहां से निकल करके आएगी। तो रिलीजन भी
और इससे जुड़े हुए हजारों सैकड़ों कहानियां जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। वैल्यूज इन वर्क प्लेस। अब यहाँ पर हम लोग एज ए टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग के लिए वर्क प्लेस हमारा स्कूल ही है। तो वैल्यूज का क्या रोल है वर्क प्लेस में? तो जो हमारा वैल्यूज है वो हमारे टास्क परफॉर्मिंग को, हमारे वर्क पॉलिसी को क्या करता है, वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि हम कितने ईमानदार हैं अपने काम को लेकर। कि अगर वर्क के साथ 2-3 वर्ड अगर मिल जाए, अगर काम हमारा पढ़ाना है तो एजुकेशन, तो एजुकेट करना, साथ में ऑनेस्टी, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, अगर इन चीजों का बॉन्डिंग हो जाए तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो उसका कोई जो है ना कंपैरिजन नहीं होगा, वो कमाल का वो परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें गाइड करता है कि हम इन वर्क प्लेस पे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सके। और साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ सब लोग ऑनेस्ट हैं और सब लोग अपने वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप जब पहुंचते हो तो आप भी उनके अकॉर्डिंग हो लेते हो, आपको निगेटिव चीजें इम्पैक्ट नहीं करती है। तो इसलिए वैल्यूज वर्क प्लेस पर क्या है, तो टाइम मैनेजमेंट है, साथ ही साथ ऑनेस्टी है और डिसिप्लिन है कि हम ये चेक करते हैं कि हम अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब वैल्यूज को का बेसिकली दो टाइप है वैल्यूज को। एक को बोलते हैं टर्मिनल स्पेसिफिकली डेड एंड होता है, और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो आगे चल करके वो खत्म हो जाते हैं, वो डेड एंड को तक पहुंच जाते हैं। यानी कि टर्मिनल को बोलते हैं मींस टू एंड, शुरू से लेकर के अंत तक। यानी कि आप उस वैल्यूज को अपनाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हुए उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, और जब आप अचीव कर लेते हो तो वो एंड कर जाता है। इसीलिए इसको सेल्फ सेंटर्ड बोला जाता है। जो पहला हमारा टर्मिनल वैल्यूज है वो आगे देखेंगे स्लाइड में कि ये टर्मिनल वैल्यूज क्या क्या सारा चीज है, हम किस किस चीज को इसमें रख सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल क्या चीज है। तो जो ये जो टर्मिनल है ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये ऐसे वैल्यूज है जो सिर्फ हम से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ हम अकेले इन्वॉल्व रहते हैं, फायदा सिर्फ हमारा होता है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंटल है ये हमारा मेन गोल होता है, इसमें सिर्फ हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं बल्कि ये सबको साथ लेकर के चलना होता है, और जब सबको साथ लेकर के चलेंगे तभी हमारा वो वाला वैल्यू जो है इंस्ट्रूमेंटल अचीव होगा। तो सबसे पहला है टर्मिनल वैल्यू, जैसा कि हम बोले कि इसमें एंड है, एंड पॉइंट है कि एक फैमिली को अचीव कर लेना, सिक्योरिटी को अचीव कर लेना। जब हम इस स्पेसिफिक चीजों को अचीव कर लेते हैं तो हमारा टर्म वैल्यू जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस पूरी तरह से जो है अचीवमेंट के ऊपर नहीं है, और इसका लोकस बाहर की तरफ रहता है। हम इंटरनली काम नहीं करते हैं, हम इंटरनली नहीं सोचते हैं, हम एक्सटर्नली करते हैं और एक्सटर्नली सोच रहे होते हैं। जो डुकीज है, डुकीज फिलोसोफर की मैंने बात की, और उन्होंने टर्मिनल वैल्यूज को बताया कि ये इसको डिफाइन कर सकते हैं मींस एंड एंड्स के बीच का रिलेशन, कि हमें जरूरत क्या है और वो जरूरत अचीव हो गया, इसके बीच का जो रिलेशन है और उसको अचीव करने में हमने जिस वैल्यूज को यूज किया है उसको हम टर्मिनल वैल्यूज बोलते हैं। ये कुछ टर्मिनल वैल्यूज का जो है लिस्ट है, थोड़ा सा धुंधला है, ट्रू फ्रेंडशिप या फिर क्लोज कंपेनियन, इधर से चलते हैं। ए वर्ल्ड एट पीस, यानी कि दुनिया में पीस कायम हो जाए, वो हो गया, वो हो जाएगा। फैमिली में पीस कायम, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, फैमिली में पीस हो जाए। फैमिली सिक्योरिटी, फ्रीडम, भाई जब तक हम आजाद नहीं थे हम फ्रीडम की बात करते थे, आजाद हो जाएंगे, ये हमारा उस वक्त क्या था, टर्मिनल वैल्यूज था। फिर हमने इसको अचीव कर लिया तो अब ये एंड हो गया। तो इसी तरह इक्वालिटी बहुत दिनों से जेंडर इक्वालिटी या फिर अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट हो जाए, ऑन द रिलीजन बेसिस, ये सारे चलते रहे। तो हम इक्वालिटी को सीख कर रहे थे, हमने इसको भी अचीव कर लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को चाहिए होता है और सब अचीव भी करते हैं इसको। हैप्पीनेस, तो ये वो चीजें हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी। तो आई होप इतने से आप समझ गए होंगे कि ये टर्मिनल वैल्यूज क्या है, यानी कि वो वैल्यूज जिसको हम सीख करते हैं, जिसको हम स्ट्राइव करते हैं और फाइनली उसका एक एंड पॉइंट होता है, हम उसको अचीव कर लेते हैं। ऐसे वैल्यूज को हम टर्मिनल वैल्यूज बोलते हैं।
दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो है ये टर्मिनल से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टर्मिनल खुद के लिए सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। इसमें आप सिर्फ खुद को लेकर के नहीं चल सकते, इसमें जो है पीपल की बात होती है कि व्हाट अल्टीमेटली पीपल वांट। मनुष्य के तौर पर हम किस चीज को अचीव करें, वहां था कि एज ए पर्सन हम क्या अचीव करें। अगर कोई पिता है तो एज अ फादर उसका क्या रोल है, एज ए फादर क्या अचीव कर रहा है, ये था टर्मिनल। और इंस्ट्रूमेंटल आ जाता है एज ए पर्सन, सॉरी एज ए पीपल, कि हम मनुष्य हैं तो हम किस चीज को अचीव कर रहे हैं। एज ए टीचर हम क्या अचीव कर रहे हैं, क्या गोल्स हैं हमारे, और ये कभी खत्म नहीं होता है और ये लगातार चलने वाला है। इट इज नॉट, नीचे लिखा हुआ है तीसरा की रुकी जी बताते हैं कि ये कोई एंड गोल नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा मीन्स है जो जिसका एंड पॉइंट है नहीं, वो आगे चलता रहता है, हम इसको कभी कंप्लीटली अचीव नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का। अब जैसे कि एम्बिशियस, अब कहानी से समझते हैं, वो कहानी पंचतंत्र वाली सबने सुनी होगी, फिर कछुआ था फिर खरगोश था, दोनों में रेस लग गया। तो कछुआ को पता था हम ये रेस नहीं जीत पाएंगे, फिर भी उसने लड़ा क्योंकि वो एम्बिशियस हो रहा था, उसको लग रहा था, मतलब पता नहीं उसके अंदर क्या था कि हम जीतेंगे, और हार्ड वर्किंग था। तो जब इस तरह के वैल्यूज होते हैं, यही है हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ब्रॉड माइंडेड, कि हम किसी भी चीज को नैरो होकर के नहीं सोचे, हम उसको ब्रॉड वे में सोचे, कैपेबिलिटी, चीयरफुल। तो ये सारी एक ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको दिखेगा इसका कोई डेड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये ब्रॉड वे में, इसको हम कंप्लीटली कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। आप आज किसी चीज के लिए एम्बिशियस हैं, वो अचीव हो जाए, कल किसी और चीज के लिए एम्बिशियस हो जाते हैं। अब है नेचर ऑफ वैल्यू। नेचर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो 6 नेचर है इसके। सबसे पहला कि जो वैल्यूज है वो पार्ट ऑफ कल्चर है, यानी कि वैल्यूज वो एलिमेंट है जो हम कल्चर से ग्रैस्प करते हैं। वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, ये सारे मीनिंगफुल सिंबल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए। इसके अलावा सोसाइटीज, हमारा सोसाइटी का निर्माण ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक रचना, ये कल्चर से होता है, और इसीलिए ये वैल्यूज को बहुत ज्यादा गाइड करता है। दूसरा है लर्न रिस्पॉन्सेस। लर्न रिस्पॉन्सेस में है कि जहां वैल्यूज हम कल्चर हमें गाइड करता है वैल्यूज को एडॉप्ट करने में, वहीं जो वैल्यूज है वो उसे सीखा भी जा सकता है। ये यहाँ पे अरस्तु वाला कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से अरस्तु बताते हैं कि भाई लर्न हम कर सकते हैं, बाहर के आइडियाज को एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वैल्यूज को सीखा जा सकता है। हम बड़ों को देखते हैं, हम कहानियों से सीखते हैं, तो यहाँ पे एक नेचर है कि इसका एक एस्पेक्ट है कि हम इसे सीख सकते हैं। तीसरा है इनकलकुलेटेड। इसका मतलब है कि हम वैल्यूज को अपने अंदर जो है वो पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास हो सकता है, ये ट्रांसमिट होती है वैल्यू, कि हम हमारे अंदर जो वैल्यूज है उसको हम कहीं से ले करके आ रहे हैं, वो हम अपने जनरेशन से ले करके आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सोशल फिनोमेना, यानी कि सामाजिक प्रारूप भी, एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है वैल्यू का। समाज में भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमारे वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं। पांचवा आपका ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारे नीड्स को, हमारे बहुत सारे नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है, या फिर इस सोसाइटी में बहुत सारे नीड्स हैं, इस नीड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे लिए वैल्यूज जो है मार्गदर्शक का काम करता है, वो हमें क्या करता है, वो गाइड करता है आगे की तरफ। साथ ही साथ एडेप्टिव प्रोसेस भी है, बहुत चीज़ों को एडेप्ट करने में वैल्यूज हमारे लिए काम करता है कि किस चीज़ को एडेप्ट करना है, किस चीज़ों को एडेप्ट नहीं करना है। अब आया हमारा वैल्यू एजुकेशन। तो अभी तक जो चीज़ें थी ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा था कि आप थोड़ा सा बोर्ड में होंगे। अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ये टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने लगा रखा है कि आप जो है लगातार जो है ब्रेन उस प्रोसेस से थोड़ा सा भी ब्रेक आपको मिलता है। तो अब जो हम लोगों का मेन है, अभी तक हम लोग वैल्यूज पे बात कर रहे थे, अब है वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन में वैल्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है कि
हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसका जो क्वालिटी है, उसका जो फॉर्म है, उसमें मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी का स्थान शुरू से रहा है। उसमें अगर मोरल वैल्यूज नहीं रहेगा एजुकेशन में तो हम सबको नहीं सिखा सकते, हम सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। और साथ ही साथ जो वैल्यू एजुकेशन है वो एजुकेशन को सेव करता है ताकि हम सामने वाले में, हम बच्चों में, स्टूडेंट्स में एक अच्छे कंडक्ट और बिहेवियर को क्रिएट कर सकें। अब इसकी जरूरत क्यों जरूरत है वैल्यू एजुकेशन की, क्यों सीबीएसई इतना जोर देता है, दुनिया भर के सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्यों इन चीज़ों पर इतना जोर देता है, तो ये आपके सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीएड या फिर इस तरह की डिग्री को परस्यू कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता ही है यहाँ से कि भाई बताइए वैल्यू एजुकेशन का जो है क्या नीड और इम्पोर्टेंस है, बताइए। तो ये क्वेश्चन आता है, ये आपको इस सेशन में भी ये क्वेश्चन आगे करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला चीज है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, यानी कि जिस बच्चे को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में वैल्यू एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मैनर्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन। आप क्लास में जाइए तो सारे बच्चे जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हुआ दिखेंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल मैम ने जिक्र किया कि एक जो नया एक ट्रेंड चला हुआ है कि आपको हर बच्चों में दिखेगा, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में दिखेगा, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, कि वो दूसरे सब्जेक्ट के क्लास में वो दूसरा सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर पे होमवर्क के केस में अगर वो करके नहीं आते हैं तो वो दूसरे क्लास में बैठ करके दूसरा चीज कर रहे हैं। इसका एक सेंस क्या बन रहा है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ये बन रहा है कि वो आपके सब्जेक्ट को लेकर के, अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, यानी कि मेरे क्लास को वो सीरियसली नहीं ले रहा है, उस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि मुझे ये सीखना। तो इस तरह के जो कॉपरेशन है, और साथ ही साथ जब ऐसा हो रहा है तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबको साथ लेकर के चलने में वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ों को डेवलप करने में वैल्यूज एजुकेशन जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम देश में एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक, पुलिस है, न्याय है, जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, और सब अपने तर्ज पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर दिन बहुत सारे क्राइम्स होते हैं हमारे देश में। हर दिन इंडिया में मतलब ढेरों सारे क्राइम्स होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। भारत में हर दिन तो 60,000 केस रजिस्टर होता है, सिर्फ FIR रजिस्टर होता है 60,000, और इसके कम से कम 10 गुना केसेस होते होंगे जिसके FIR रजिस्टर नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बच्चों को अच्छा सिटीजन नहीं बना रहे, एक अच्छा नागरिक नहीं बना रहे। अगर बच्चा कहीं खड़ा होकर के पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी डिसरिस्पेक्ट करता है, आप देखते हो खड़ा होकर के दीवार पे कहीं लिख दिया, ये एक अच्छे सिटीजन का निशानी नहीं है, ये गुड सिटीजन को हम क्रिएट नहीं करते। तो जो वैल्यू एजुकेशन है, जब हम स्कूल को इसलिए भी ये बताया गया कि आप बच्चों पे इस मैटर पे काम कीजिए ताकि भविष्य में जाकर के ये बच्चे ही हमारे फ्यूचर हैं, और हम उन्हें उनके अंदर वैल्यूज को डेवलप करके हम एक अच्छे सिटीजन्स को तैयार कर सके, एक अच्छा भविष्य तैयार कर सके। इसके अलावा सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक है, डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। तो बाकियों के लिए अब एक चीज क्या है कि एक चीज तो सब कहते आए थे कि भाई बड़ों का सम्मान करें, लेकिन अब ये पुराना हो गया, ये आउटडेटेड हो गया कि बड़ों का ही सम्मान क्यों। सम्मान का हकदार सब कोई है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं। भाई फिलॉसफी तो बोलती है कि जिसमें कॉन्शियसनेस है उसका भी सम्मान कीजिए, और जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है उसका भी सम्मान कीजिए। और हम जाने अनजाने करते हैं कि आप अपने सम्मानों का रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उसे अच्छे से रखते हैं। ये रिस्पेक्ट, तो ये सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होनी चाहिए हर चीज को लेकर कि आप कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं उठते हैं, तो वहां पर जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो ये सेंस ऑफ रिस्पेक्ट से वो ट्रिगर होता है। इसके अलावा पैट्रियोटिज्म, जो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, देशभक्ति की जो भावना है या फिर जो नेशनल यूनिटी है, इसको प्रमोट करने के लिए वैल्यूज एजुकेशन बहुत जरूरी है।
इसके अलावा डेवलप डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां सबको अपने तरफ पर लिबर्टी है, आज़ादी है, तो हम अपने इस आज़ादी को नेगेटिवली यूज ना करें। अब आप देखते हो कि एक बच्चा जा रहा है कहीं रास्ते में, उसको कोई एनिमल्स दिख गया तो पत्थर उठा करके मार देता है, तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, हमने उसे वैल्यूज नहीं सिखाया है। वो इंडिपेंडेंट तो है, वो कोई एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन ये जो एक्टिविटी उसने किया ये वैल्यूड नहीं, इसमें वैल्यूज दिखनी चाहिए। इसके अलावा टॉलरेंसी, ये सबसे कम हो रहा है हमें इंसानों में आज के डेट में, जो सहने की क्षमता है ये सबसे ज्यादा कम हो रही है। वो सहने की क्षमता जो है हम डेवलप कर सकते हैं वैल्यूज को ही आगे बढ़ा करके। इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ, धर्म को अपने साथ लेकर के आगे चलना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने तरह से थोड़े से एस्थेटिक होते हैं कि नहीं मानने वाले हैं भाई की, लेकिन फिर भी उनके फिलॉसफी को तो हम आगे लेकर के चल सकते हैं, वहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कि जो बच्चे आज हमारे सामने हैं, कल को वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन लेंगे कई चीजों में, तो वहां पे उनके वैल्यूज दिखने चाहिए। अब टाइप ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो सबसे पहला है आपका मॉरल वैल्यूज। अब मॉरल वैल्यूज की बात करें तो इसमें आपका है ऑनेस्टी, मतलब मॉरल वैल्यूज को क्या है, इसको हम लोग वैसे भी डिटेल में करने वाले हैं, आगे के स्लाइड में ये बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा सोशल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, डिसिप्लिन अपने आप में एक वैल्यूज है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं अलग अलग टाइप के वैल्यूज के। सोर्स ऑफ वैल्यू क्या बात नहीं, इसके बाद एक सेशन है, 1 घंटे का सेशन है क्वेश्चन का। अगला स्लाइड पर करवाइए, बढ़ाइए अगला स्लाइड, इसके बाद अगला स्लाइड बढ़ाइए। ये सेशन है, यानी कि 1 घंटे जो है एक तरह से कहिए कि ये आपको ये क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, ये 3 क्वेश्चन है। पहला है मतलब कि लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस है बिना वैल्यू का। कैसे वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स के बीच, प्राइमरी बच्चों के बीच में हम वैल्यूज को कैसे कल्टीवेट करें, कैसे जगाएं, इसको 500 वर्ड में लिखना। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू एजुकेशन, डज इट नीड्स डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंट, नीड और इम्पोर्टेंट वाला स्लाइड आया था। और ये तीसरा है कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे वैल्यू क्राइसिस हो रहा है, यानी कि वैल्यू डिग्रेड हो रहा है, लगातार वैल्यू का जो है वो डीजेनरेट हो रहा है हमारे सोसाइटी में, क्यों लॉस हो रहा है इतना, क्यों लोग वैल्यूज पर इतना काम नहीं कर रहे हैं, ये और साथ ही साथ इसके रीजन लिखने हैं और आपको कुछ सजेशंस देने कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते। इन 3 क्वेश्चन में कोई 2 करने हैं, उसके लिए आपको पेपर दिया जाएगा, कोई 2 करना है और ये 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चन ही केवल 1 घंटा से। इससे पहले हम सोर्स ऑफ वैल्यू कर लें, उसके बाद ये वाला सेशन होगा। तो सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से एजुकेशन को हम वैल्यू एजुकेशन निकल करके आती है। एक फैमिली का एक वैल्यू का सोर्स था, ये वैल्यू एजुकेशन का सोर्स है। वही सारी चीजें हैं, ठीक उसी तरह से फैमिली से हम लेते हैं, कम्युनिटी का रोल होता है, स्कूल से वैल्यू और एजुकेशन दोनों साथ में ले रहे हैं, कल्चर, रिलीजन, बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है। इसके अलावा बुक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, संविधान में जो हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाता है, नेशनल वैल्यू सिखाता है, पॉलिटिकल वैल्यू, ये 2-3 वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन से सीखने को मिलता है। फिलॉसफी मोरालिटी को बिल्डअप करता है और हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है चीज़ों को एनालाइज करने में। तो ये अलग अलग जो है ये सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है।